नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का चेतावनी भरा बयान, बीआरएस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को जेल जाने का खतरा। केटीआर का कड़ा संदेश, मुख्यमंत्री से गरीबों के घरों की सुरक्षा की अपील। आतिशी का बीजेपी पर वार, बस मार्शल को बेरोजगार करने का आरोप। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना। भूपिंदर हुड्डा का एग्जिट पोल पर बयान, कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने का विश्वास। गाजा युद्ध की 1 साल पूरे, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि बीआरएस सोशल मीडिया के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं को जेल भी हो सकती है। इस बयान से बीआरएस के भीतर चिंता बढ़ गई है, खासकर हाल ही की गिरफ्तारियों के बाद। कैप्टन फासिक के नाम से मशहूर राजशेखर की गिरफ्तारी ने बीआरएस कार्यकर्ताओं में खलबली मचा दी है। इस पर सोशल मीडिया के संयोजक माने कृष्ण ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दशहरा की छुट्टियों का फायदा उठाकर बीआरएस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తాం అనుకుంటారు. సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంకు రారు కానీ చెర్లపల్లికి అయితే పోతారు. నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నా, సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తామని కలలుగా అంటున్నట్టున్నాడు ఆయన. నువ్వు సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలో రావు కానీ చిల్లర పనులు చేస్తే మాత్రం చెల్లపరులో చిప్పకూడు తింటావని నేను చెప్తూ మనందరం కలిసికట్టుగా కాకా స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం। पंचायत राज एवं जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री सीता अक्का ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में महाराष्ट्र में दिए गए भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें मोदी ने तेलंगाना में किसानों के कर्ज माफ न करने का आरोप लगाया था। सीता अक्का ने कहा कि मोदी का भाषण मनगढ़ंत और उनके शासनकाल में किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 700 किसानों की जान चली गई है। सीता अक्का ने कहा कि जिसने भी काले कानून लाए हैं और किसानों पर अत्याचार किए, उसे हमारी सरकार से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी पर अपने चुनावी वादे पूरा न करने का भी आरोप लगाया। చాలా రోజులుగా మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కొలువులు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ రూపంలో మీకు అందరినీ ఈరోజు ప్రజాపాలకుడు మరి గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు మరి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అండ్ పిఆర్, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ అండ్ లైబ్రేరియన్స్ టోటల్గా మరి 1473 మంది ఈరోజు మరి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటున్న మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మా మంత్రివర్గ సోదరులు, ఇతర పెద్దలు, పత్రికా మీడియా సోదరులు, మన డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। చాలా రోజులు నా దగ్గర కూడా మన వాళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు ఇస్తారని చెప్పడం జరిగింది, కానీ పండుగ ముందు అతిపెద్ద పండుగ, ఎక్కువ రోజులు మీ లైఫ్లో మీరు ఎంతో గొప్ప లక్ష్యాలతోటి మరి చదువుకొని ఈ పండుగ ముందు ఈ పెద్ద పండుగ జరుపుకోవడం లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండేటువంటి పండుగ। మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మరి ఎన్నో లక్ష్యాలతో మీరు చదువుకొని ఈ పొజిషన్లోకి వస్తున్నారు। ఎంతైతే చదువుకునేటప్పుడు నిబద్ధతతో, నిజాయితీతో, అంకిత భావంతో పని చేయాలని లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటారో, ఆ లక్ష్యానికి మరి చేరువగానే మనం పనిచేస్తే లైఫ్ లాంగ్ ప్రజలకు గుర్తుండిపోతాం। మనం ఆ రిటైర్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు వెనకాల చూసుకుంటే ఏం కనపడదు, మధ్యలో సాలరీస్ రావచ్చు, రకరకాలుగా ఏమైనా ఉండొచ్చు పోవచ్చు, కానీ అంతిమంగా మనం పనిచేసే ప్రాంతంలో మీదైన శైలిలో మీ యొక్క మార్పు ఉండే విధంగా మరి మనసు పెట్టి పనిచేయండి, కష్టపడి పనిచేయండి, ఈ ప్రజాపాలకునికి ప్రజాపాలనకు మంచి పేరు తీసుకురండి, లైఫ్ లాంగ్ ప్రజలలో గ్రామాలలో నిలబడే విధంగా మరి మీ యొక్క నాణ్యత ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి
డ్యూటీస్ చేసి మంచి వర్క్స్ చేసి అవి చూసినప్పుడల్లా ఆ వర్క్ ఆ బిల్డింగ్ ఏదైనా కావచ్చు, చూసినప్పుడు పలానా అధికారి ఉన్నప్పుడు మాకు ఈ పని చేసిండు అనేటువంటి గుండెల్లో గుర్తుండిపోయే విధంగా పని చేయండి. అది మాత్రమే మనల్ని స్వాస్థ్యంగా ప్రజలకు గుర్తించే విధంగా చేస్తుంది. ఏది కూడా ఉండదు స్వాస్థ్యం, కానీ మనం ప్రజలకు చేసిన పని మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజాపాలకుడిగా ఉంటూ మరి అనేక చిక్కుముడులన్నీ కూడా విడదీస్తూ ఎవరికి వాళ్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ పెండింగ్ లో ఉన్న వాటిని కూడా క్లియర్ చేస్తూ ఈ రోజు పండుగ ముందు కొలువుల జాతర అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు వారి టైం ఇచ్చి మనకు ఈ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అన్ని కూడా మీకు అందిస్తున్నందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वह गरीबों के घरों को गिराएं न बल्कि बचाएं। केटीआर ने कहा है कि यदि उनके घर गिराने से मुख्यमंत्री को शांति मिलती है तो वह इसके लिए तैयार हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबों के घरों को न तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को पहले अपने भाई तिरुपति रेड्डी के घर को तोड़ना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बस मार्शल के मुद्दे पर बीजेपी और एलजी सक्सेना की कड़ी आलोचना की है, उन्हें गरीब विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर में वीके सक्सेना द्वारा बस मार्शल की सेवाएं समाप्त करने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। 6 अक्टूबर को जनता की अदालत में संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी आम लोगों को परेशान करने में जुटी है। 10 साल पहले की दिल्ली कैसे होती थी? 10 साल पहले की दिल्ली में इस तपती हुई गर्मी में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। लंबे लंबे पावर कट लगने के बावजूद महंगे महंगे बिजली के बिल आया करते थे और एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार सोचता था कि बिजली का बिल देने के लिए घर का कोई और खर्चा काटना पड़ेगा, बिजली बिल देने के पैसे नहीं होते थे एक आम परिवार के पास। कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकर के इंतजार में खड़ा होना पड़ता था। हाथ में एक कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, जहां आम परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बैठने के लिए टेबल कुर्सी होती थी, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना पंखा होता था, ना पीने को पानी होता था, ना पढ़ाने के लिए टीचर होते थे। ये था 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे कि कोई अपने परिवार के सदस्य को लेके जाना नहीं चाहता था। अपने जेवर गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज कराते थे। जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं होती थी। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना नाली थी। दिल्ली के लोग परेशान थे। वो नेताओं से परेशान थे, क्योंकि वो देखते थे कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। कोई, उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी।
वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों और मजदूरों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान इक्को गार्डन पहुंचे। इस महापंचायत का उद्देश्य किसानों की मांग को सरकार तक पहुंचाना था। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। कहा है कि मौजूदा सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। टिकैत ने बीजेपी की स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा है कि पार्टी बहुमत से दूर है, जबकि बीजेपी ने एग्जिट पोल के नतीजों को गलत ठहराते हुए दोबारा सत्ता में आने का विश्वास जताया है। अरे बारी में कहा ये पुलिस ने सारे रोक दिए रास्तों में, बारी में कहाँ इकट्ठे हुए, रास्ते में रोके जगह जगह। जो बसें आनी थी उनके घर पे जाकर बैठ गए, बसों को ड्राइवर को लेकर उतार कर थाने में, तो कैसे आएंगे। आज वार्ता है, बातचीत करेंगे इनसे। हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा। जी सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जागी। बदला है किसान आंदोलन का, किसान ने बदला ले लिया। भाई किसान लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। रहने का हार की सरकार वहां की, कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल की सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने हरियाणा की जनता का शांतिपूर्ण मतदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हुड्डा ने बताया कि राज्य की जनता ने पहले कांग्रेस की सरकार देखी थी, लेकिन बीजेपी की शासन में बेरोजगारी और इन्फ्लेशन बढ़ गई है और कानून व्यवस्था भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में हम नंबर 1 थे, अब स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूं भाई लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो कहते सर ये एग्जिट पोल हैं? भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल है, कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का घोषणा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत तो सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ी का तो पता ही है, अपने जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि जो सत्ता बनेगी वो चाबी हमारे पास रहेगी। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खूगी उनकी। कांग्रेस मांगे हिसाब का कितना असर है?
ये पूरे कांग्रेस पूरे 10 साल सक्रिय रही। कार्यक्रम में जो विपक्ष में हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया था, हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना निभाया और पूरी जन समस्या उठाई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी चलेगी कांग्रेस पार्टी में, आपका भी दावा है, शैलजा भी दावा कर रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा। तू भी दावा कर ले, कोई नाट है, कर ले तू भी। प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है। ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की। विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी। सर, जो एग्जिट पोल आया है उसमें नेशनल पार्टियों को ज्यादा सीटें दिखाएंगे, जो रीजनल पार्टियां थी उनको सीटें कम दिखाई नहीं रही है, जैसे जेजेपी है ही नहीं। वो तो पहले कहा था वोट काटो, वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, उनका मकसद वोट काटने हैं। राम रहीम जो जिस तरह जेल से बाहर गया उसका असर हुआ? ऐसा है, जो जुडिशियल मैटर होता है उसमें मैं नहीं बोलता, सब जुडिस मैटर है। कितनी सीटें की उम्मीद है? दीपेंद्र कह रहे थे कि 60 से ज्यादा सीटें हैं। वो कुछ कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे से पूछा, मेरा जवाब दे दिया मैंने। अच्छा, आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट में किन को खास तौर पर? हाइपोथेटिकल सवालों को मैं जवाब देता नहीं। सर, एक अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, कौन? अनिल विज जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में 5% कम वोट हुआ, उनकी विधानसभा में 3% ज्यादा वोट हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा को ज्यादा प्यार मिल रहा है। देवी तो हारेंगे वो, देवी तो उनका सीट खतरे में है। आपने 2 डिप्टी सीएम की बात रखी थी, इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे? क्या कुछ बना है अभी? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता मैं, कोई बार कह सर, एक सवाल ये है कि कल से एग्जिट पोल जब से आए हैं, अब सुबह 12 बज चुके हैं, तो हाईकमान से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई खुश है सारी बात आपको बतानी जरूरी है क्या? सर, जिस तरह से पिछली बार जो रविवार को एक किसान नियुक्त प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद किसान नेताओं ने अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा किसानों की समस्याओं का ध्यान रखा है। किसान नेताओं ने समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान किसानों के लिए किए गए विकास कार्यों की सराहना की और बताया कि बीजेपी सरकार के तहत किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि गरीबी और कर्ज के बोझ तले किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। गाजा युद्ध की 1 साल की सालगिरह पर दुनिया भर के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने इजराइल द्वारा जारी हमलों को रोकने की मांग की है। रॉयटर्स के अनुसार मध्य लंदन में लगभग 40,000 प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, जबकि पेरिस, रोम, मलीना, कैपटाउन और न्यूयॉर्क में भी हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के पास अमेरिका के इजराइल के सैन्य अभियानों के समर्थन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अमेरिका दूतावास के पास कम से कम 1000 नागरिक इकट्ठा हुए और इजराइल को हथियारों की खेप रोकने की मांग की। I stand with Palestine, and I feel like this march will maybe represent more of why everyone needs to stand with Palestine. All the leaders, listen to your people. And we want peace in the Middle East and in the world, but listen to your people. Your people are out here in the streets every month
and you're just not listening. You're deaf, dumb, and blind. Listen to them. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! इजरायली शहर बेरशिवा में गोलीबारी के परिणाम स्वरूप कम से कम एक इजरायली की मौत हो गई है और अन्य 10 घायल हो गए हैं। यह घटना रविवार को दक्षिणी इजराइल में हुई, जब गाजा में चल रहे युद्ध का 1 साल पूरा हुआ है। इजरायली चिकित्सा कर्मचारियों के अनुसार 25 वर्षीय महिला का शव इलाके से हटा लिया गया है, जबकि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। इजराइल की आपातकालीन सेवा मेगन डेविड एडोम ने इस घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने इसे एक हमले के रूप में बताया है और कहा है कि यह इजराइल के दुश्मनों द्वारा की गई आतंकवादी गतिविधि है। गौरतलब है कि इजरायली अधिकारियों के अनुसार वह इस समय गाजा और लिबान समेत 7 मोर्चों पर युद्ध कर रही है, जहां अब तक हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का चेतावनी भरा बयान, बीआरएस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को जेल जाने का खतरा। केटीआर का कड़ा संदेश, मुख्यमंत्री से गरीबों के घरों की सुरक्षा की अपील। आतिशी का बीजेपी पर वार, बस मार्शल को बेरोजगार करने का आरोप। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना। भूपिंदर हुड्डा का एग्जिट पोल पर बयान, कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने का विश्वास। गाजा युद्ध की 1 साल पूरे, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। 1TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।